morning students, welcome to your science class. Today I am going to provide you solution of your revision test of chapter 9. Your first question was, what is matter? Matter क्या होता है? Anything that occupies space and has mass is known as matter. Second question was, define solidification. What is solidification? You have to define it. The changing of a liquid like water into solid like ice is called solidification. जब कोई liquid को हम solid में change हो जाता है, that is known as solidification. और इसका example क्या है? जब water ice में convert हो जाता है, because water is liquid और जो ice है that is solid form. So this is solidification. Now long answer question. First one was, how do liquids change to solid and gases? Liquid किस तरह से solids और gases में change हो जाता है? Matter can change state. हमने इस chapter में read किया था कि जो matter है वो state change कर सकता है. That is, it changes its forms. वो अपना form change कर सकती है. If we freeze liquid like water, अगर हम liquid like water को freeze करते हैं, it will change into ice. Then it means it will definitely change into ice. Then it is solid, तब वो solid बन जाता है. If the water is heated, अगर water को heat किया जाए तो जो solid है it will change into gaseous form because वो boil हो जाएगा. So this is the process of liquid, how a liquid changes into solid and gases. Your second question was, explain the differences between a physical and a chemical change using an example. कि आपको difference बताना था between physical and chemical change और आपको एक example भी use करना था. So we have read in this chapter what is physical change. A physical change is a change in which the substance may look or feel different. जो substance है physical change में, इसका look या हम उसको feel differently कर सकते हैं, but जो इसका internal composition है that remains the same. Like when water is freezed, तो वो क्या बनेगा? Ice बन जाएगा. तो जो उसके inner molecules हैं या composition है that remains the same, वो change नहीं होता. Whereas in chemical change is a change in which the matter changes into something completely different. इसमें जो matter है that changes into completely different. Like if we burn a piece of paper को अगर हम burn करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? That will change into ash. वो ash में convert होगा and ash is completely different. Ash को हम and moreover जो chemical change है that is not reversible because ash को हम convert नहीं कर सकते to its original substance that is paper में. But in physical change it is reversible. Reversible क्यों है? क्योंकि water को हम solid that means हम ice में convert कर सकते हैं and after that ice को melt करके हम दोबारा water में convert कर सकते हैं. It was all about your revision test. Students, today we are going to read chapter number 10, more about force, energy and simple machines. In this chapter we are going to learn about force. What is force? A push or pull acting on a body. कोई भी अगर आपके पास object है या कोई body है उसमें अगर आप push या pull करते हो that means you are applying force. Change in state, rest to motion. अगर हम किसी भी, suppose this is a body और ये रेस्ट पे है, दिस इज नॉट मूविंग, बट अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करके पुश या पुल कर रहे हो तो आपने इसका चेंज इन स्टेट किया है. दैट मीन्स ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे थी और आपने इसको क्या किया? मूव किया. देन सेकेंड वन इज चेंज इन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फोर्स और बाय अप्लाइंग फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. अदर देन दैट, change in shape or size of an object. Whenever we apply force, जब भी हम force apply करते हैं तो हम किसी भी object का shape as well as size हम change कर सकते हैं. Okay students, we are going to discuss about types of forces. Types of forces क्या है? Forces two types की होती हैं. First is gravitational and the other is frictional. So let us discuss what is gravitational force. See, I have a ball in my hand. Ball है, अगर हम ball को थ्रो अप करते हैं तो ये डाउन ही क्यों आती है? ये अप अगर हमने थ्रो किया है तो ये ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती? दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट विद इट्स मास. जो फोर्स है ये अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मास के साथ टुवर्ड्स डाउन. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Let us see what is frictional force.
that we see in our day-to-day life. Like this is a car. जब भी कार चलती है तो हम उसका ब्रेक जब भी हम कार पे ब्रेक लगाते हैं, we apply a frictional force. And how is it possible? With the help of wheels and the brake. जब भी ब्रेक लगाया जाता है, एक मूविंग कार में जब भी ब्रेक लगती है तो क्या होता है, स्लोली जो टायर्स हैं, जो व्हील्स हैं, वो स्पीड पहले स्लो होती है एंड आफ्टर अ वाइल वो रुक जाती है. एंड दिस हैपन्स ड्यू टू frictional force between the brakes and the wheels of the car. Now let us read this chapter. Look at the picture shown alongside. ये आपको picture दिए हुए हैं. In this, here is a man who is, what he is doing? He is pushing the car. In the given picture, the person is dash the car. He is pushing the car. So you have to write down pushing here. While pushing the car, he is using the concept of, यहाँ पे जब वो पुश कर रहे हैं कार को, दैट एट दैट टाइम वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं? ऑफ फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड अबाउट फोर्स. अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स. एक पुश या पुल जब भी हम किसी बॉडी पे करते हैं, दैट इज़ फोर्स. सी, कार इज़ अ बॉडी, और जब वो पर्सन इसे पुश कर रहे हैं, दैट मीन्स ही इज़ अप्लाइंग फोर्स हियर. Force is applied when two or more bodies act upon one another to bring in one or more of the following effects. Force जब अप्लाई किया जाता है तब कब होता है? जब two or more than two bodies एक साथ act upon करते हैं और उससे क्या effects होते हैं? Let's read here. Change from the state of rest to the state of motion in an object and vice versa. जैसे ये कार is not moving and जब वो पुश कर रहे हैं तो कार का स्टेट ऑफ रेस्ट कन्वर्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि कार मूव करेगी. देन सेकेंड वन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. हम विद द हेल्प ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को भी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो चेंज इन द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. सपोज़ ये जो कार है कि अकेले पुश कर रहे हैं तो ये क्या होगा, स्लोली मूव करेगा. बट अगर यहाँ पे 4 पीपल एक साथ इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, जो इसकी स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी. थर्ड वन, चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर फोर्स अप्लाई करते हैं हम तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, एज वेल एज किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ भी चेंज हो सकता है. सपोज़ अगर ये पेंसिल है, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, जो पेंसिल की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, डैट मीन्स उसका साइज़ चेंज हो जाएगा. और अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको हैंड से क्रश कर सकते हो, अगर आप उसको क्रश कर दोगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. सपोज़ अगर हमने कोई पेपर लिया और उसको हमने क्रश किया, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, उसका शेप will change. That means with the help of force we can change shape and size of an object. Okay students, force can be exerted by humans, animals and machine. Force कौन यूज़ कर सकते हैं? Human beings, animals as well as machines. machines का यूज़ होता है अगर कोई भी heavy object को pick करना, मीन्स पुल और पुश करने के लिए मशीन्स का यूज़ होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय ह्यूमन बींग्स. तो उस जगह पे मशीन्स का यूज़ किया जाता है. दैट मीन्स मशीन से भी फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं. नेचुरल फिनोमिना लाइक ग्रेविटी, विंड एंड वाटर ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स. जो नेचुरल फिनोमिना है लाइक ग्रेविटी, विंड और वाटर, ये भी फोर्स को अप्लाई करती है. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स के कौन से टाइप्स होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लेट अस स्टडी 2 ऑफ देम इन डिटेल. बट हम यहाँ पे आपके इस चैप्टर में 2 फोर्सेस के बारे में ही रीड आउट करेंगे. दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? वी ऑल हैव सीन दैट अ बॉल दैट इज़ थ्रोन अप इन द स्काई फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड. हम सभी ने देखा है कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो क्या होगा, आफ्टर अ वाइल वो ग्राउंड में ही वापस आएगा. दैट विल फॉल बैक ऑन ग्राउंड. वाई? दिस इज़ बिकॉज अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉल विल पुल इट बैक टूवर्ड्स द ग्राउंड. बिकॉज जो फोर्स अप्लाई हुआ है इस बॉल पे वो उसको फोर्स डाउन करेगा बॉल को दोबारा पुल बैक करने में. दिस इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ही ग्रेविटेशनल फोर्स है.
A gravitational force is a force that attracts an object with its mass. ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसके मास के साथ, दैट मीन्स उसके वेट के साथ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर इफ इट हैज़ मोर वेट. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उतना ही ज़्यादा होगा अगर उसका वेट ज़्यादा होगा. अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ मोर इफ़ दे आर नियरर. अगर कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मोर होगा जब वो एक दूसरे के बिल्कुल नियरर हैं टू वन अनदर. एंड डिक्रीजेज एट द डिस्टेंस इंक्रीज. और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल डिक्रीज. नाउ लेट अस रीड. फैक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का दैट इज़ इक्वल टू द फोर्स, वो इक्वल है उस फोर्स के जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑल अराउंड अस. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. नाउ लेट अस रीड अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force can be seen in everyday life. It is found everywhere where objects come in contact with each other. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं और ये हमें एवरीवेयर मिलता है जहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. Whenever we stop a moving car by applying brakes तो यहाँ पे frictional force लगता है. The car slows down and eventually stops because of the friction. जो कार है वो क्या हो जाती है, slow down होता है और eventually वो stop हो जाती है because of the friction between the brakes and the wheels. जो brakes और wheels के बीच में friction लगता है उसकी वजह से. दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. और इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स. इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. और ये कहाँ पे एक्ट करता है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वन विच इज़ मूविंग. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है. अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन दिस पोजिशन तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट साइड में लगेगी तभी वो स्टॉप होगा. इफ़ यू वॉक ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस लाइक आइस. अगर आप वॉक करते हो बहुत ही स्मूथ सरफेस जैसे कि आइस, यू माइट स्लिप एंड फॉल. आप स्लिप भी हो सकते हो और फॉल भी हो सकते हो बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन आइस एंड योर फीट. बिकॉज वहाँ पे बहुत ही रेयर या लिटिल अमाउंट में फ्रिक्शन होती है आइस और आपके फीट में. रफ सरफेस ऑफर्स मोर फ्रिक्शन. जो रफ सरफेस है वो ऑफर करती है ज़्यादा फ्रिक्शन. स्मूथ सरफेस ऑफर्स लेस फ्रिक्शन. और जो स्मूथ सरफेस है वो लेस फ्रिक्शन को ऑफर करता है. सी हियर, ये आइस पे स्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्लाइड करना बहुत ही ईजी है बिकॉज यहाँ पे जो फ्रिक्शन है दैट इज़ लेस और वेरी लिटिल. बट ये रफ सरफेस है और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, मोर होता है. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? Today we have read about force and type of forces. So you have to read both these topics properly. Okay students, thank you and goodbye.